Good morning, students. Welcome to our channel, Rajendra Law Academy. So now we are going to start with the daily current affair का discussion. Today is 22nd of July and let's move on to the first news जो आज हमारे लिए important है. So first news article is related to the opposition parties doing a sit in at PM's house. So Congress leaders held after sit-in at PM's house. तो क्या हुआ? The opposition is also protesting. जैसे हम देख रहे हैं like from the last month CJP has been protesting at Jantar Mantar and then they protested in front of parliament on 20th of July on the first day of the session. तो उसके बाद से क्या है, इवन द ऑपोजिशन पार्टीज हैज जॉइंड देम एंड अभी द ऑपोजिशन पार्टी हैज डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द पीएम्स हाउस. तो क्या है, उनको वहां से उठाया गया है. तो दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर. So the principal opposition party, the Congress, took the leadership of the anti-government agitation, protesting the spate of paper leaks. तो वो भी वही सारी बातें कर रहे हैं that पेपर लीक हो रहे हैं एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स की जरूरत है. तो स्टूडेंट्स जो मुद्दे उठा रहे हैं, द ऑपोजिशन पार्टी इज रेजिंग देम इन द पार्लियामेंट. तो दे आर आल्सो, तो उसके लिए दे हैव व्हाट प्लान इन दिस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट्स हाउस. तो उसके बाद क्या, उनको वहां से उठा दिया गया. दे हैव बीन detained. So leader of opposition Rahul Gandhi being detained by police after outside the PM's residence. तो ये थोड़ा सा आप देख लेना. Okay. Next news is related to the parliament and opposition stalls parliament for second day over NEET paper leak police crackdown. Right? तो अभी हमने डिस्कस किया that opposition has been protesting in the session. तो session चल रहा है students. As we have seen, कौन सा session चल रहा है ये? This is monsoon session. Right? तो monsoon session चल रहा है from 20th of July को start हुआ था. And the opposition is what? Opposition is protesting in the parliament over certain issues. And उसमें एक है this the NEET paper leak. And then they are saying that the students are peacefully protesting. And क्या है, government is what going for police crackdown on the students. तो उसके लिए भी they are protesting कि this is कोई violence तो हो नहीं रहा है. तो peacefully अगर students protest कर रहे हैं तो right to protest तो है. Everyone has right to protest in the democracy. Right? So under article 19, like we can what? Under right to freedom of speech and expression, we can express our concerns. Right? So we have a right to. They are saying that जब पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसके ऊपर पुलिस क्रैकडाउन क्यों हो रहा है. तो उसके लिए क्या है, दे हैव स्टॉल्ड द पार्लियामेंट फॉर द सेकेंड डे. तो वो उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है. तो थोड़ा सा यहाँ पे विल अंडरस्टैंड अबाउट द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट. थोड़ा सा समझते हैं दैट हाउ दिस पार्लियामेंट फंक्शन. जब सेशन होता है तो क्या क्या होता है, थोड़ा सा वो देखते हैं. Right? So when parliament is in session, parliament in session का क्या मतलब है? That parliament will meet. Right? तो उसमें क्या है? There would be sittings. Every day would MPs would come for the sittings, and what they will do? I think the color is not visible. So they'll come and sit and discuss, debate over various issues. Right? तो ये कैसे होती है सारी फंक्शनिंग, वो समझते हैं. एक नॉर्मल डे ऑफ द हाउस कैसा लगता है. राइट? तो आप जब जाते हो सबसे पहले क्या होगा? तो वेरी फर्स्ट थिंग विच हैपेंस इज व्हाट? जाते ही सबसे पहले होता है 0 आवर. सॉरी, the first thing which will take place जब session start होगा, that would be what? The question hour.
तो क्या होता है, जैसे ही आप सेशन के लिए एमपीज इकट्ठा हुए, फॉर एग्जांपल समझ लो लोकसभा का सेशन है, राइट? तो लोकसभा का सेशन है, तो सारे एमपीज आएंगे, राइट? तो जाते ही क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन आवर होगा। व्हाट इज दिस क्वेश्चन आवर? नाम से समझ आ रहा है कि इस 1 घंटे में क्या है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एमपीज क्वेश्चन पूछेंगे किनको? टू द मिनिस्टर्स। तो एमपीज क्वेश्चन पूछेंगे मिनिस्टर्स को ऑन द वेरियस इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नीट पेपर लीक हुआ, तो एमपीज एजुकेशन मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, क्या सेफगार्ड्स हैं, फ्यूचर में क्या, कैसे आप इंश्योर करोगे कि पेपर लीक्स ना हो। तो वेरियस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वेरियस मिनिस्टर से ड्यूरिंग दिस क्वेश्चन आवर, राइट? थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन आवर में 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, राइट? फर्स्ट इज स्टार्ड क्वेश्चन, second is unstarred question, and third category is what? Short notice question. तो स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, 3 टाइप के 3 कैटेगरीज के क्वेश्चंस एमपीज पूछ सकते हैं मिनिस्टर से। अब समझते हैं ये क्या होते हैं। जिस क्वेश्चन के आगे एस्टेरिक का मार्क लगा उसको बोलते हैं स्टार्ड क्वेश्चन, जिसके आगे नहीं लगा उसको बोलते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन, और एक होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, राइट? 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। अब ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं वो समझते हैं। तो स्टार्ड क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन का आंसर जो है मिनिस्टर को क्या देना पड़ेगा? ओरली देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एमपी ने एजुकेशन मिनिस्टर से अंडर द स्टार्ट क्वेश्चन पूछा कि नीट पेपर लीक के लिए आपने क्या इंश्योर किया कि फ्यूचर में ना हो, राइट? तो उसका आंसर उनको, अगर वो स्टार्ट क्वेश्चन है तो जवाब कैसे देना पड़ेगा? ओरली उसी टाइम देना पड़ेगा, राइट? सो वेन एवर देर इज अ स्टार्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा समझना है, तो उसका आंसर कैसे देना है? उसका आंसर ओरल आएगा उसी टाइम पे, एंड उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। मतलब वो जो आंसर आएगा उसके ऊपर आप फर्दर यू कैन आस्क अनदर क्वेश्चन। तो फर्दर क्वेश्चनिंग हो सकती है उस स्टार्ट क्वेश्चन पे, राइट? तो इसीलिए क्या है, स्टार्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर स्टार्ट तो आंसर आएगा ओरल, और उसके साथ जो ओरल आंसर है उसके ऊपर फर्दर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। दिस इज स्टार्ट क्वेश्चन। अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप लिख के जो सबमिट किया हुआ है और उसका आंसर जो आएगा दैट वुड बी रिटन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अनस्टार्ड क्वेश्चन में पूछा कि नीट पेपर लीक के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, और उसका अनस्टार्ड क्वेश्चन है, तो उसका आंसर जो है उस टाइम पे मिनिस्टर उसी टाइम पे खड़े होके नहीं देंगे सेशन में, और उसका क्या है, रिटर्न रिप्लाई आ जाएगा आपको कि ये चीजें गवर्नमेंट XYZ स्टेप्स कर रही है, राइट? सो दैट इज अनस्टार्ड क्वेश्चन। बिकॉज अब इसका रिटर्न रिप्लाई और वो बाद में आएगा, तो उसके ऊपर क्या है, क्रॉस क्वेश्चनिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी, राइट? देन इज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वो है उस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन को कहते हैं जिसमें क्या है, कुछ दिन का नोटिस दे के गवर्नमेंट से क्या किसी मिनिस्टर से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल उसको 10 डेज का नोटिस दे के, मतलब पहले ही क्वेश्चन उसको दे दिया और उसको 10 डेज दे दिए टू कम अप विद द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, तो वो क्या है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या उसका आंसर रिटन आएगा कि ओरल आएगा। सो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, इज इट रिटन और इज इट गिवन ओरली, राइट? तो आई होप दिस इज अंडरस्टूड कि सबसे पहले जाते क्या होगा, सबसे पहले जाते क्वेश्चनिंग होगी, जाते ही क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, क्वेश्चन आवर, ये 1 आवर तक चलेगा। देन क्वेश्चन आवर जैसे ही खत्म होगा, नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट थिंग जिसकी जो हाउस में होगी, दैट इज व्हाट, 0 आवर। 0 आवर क्या है, इसको जीरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 12 बजे शुरू होता है, तो 0 0 0 टाइम, राइट?
तो इट्स टेक प्लेस एट 12 noon, तो 0 hour, राइट, इसलिए इसको 0 hour बोलते हैं। एंड इसमें क्या होगा, इसमें होंगे इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर, इश्यूज वुड बी रेज्ड। तो उस टाइम के जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन करी जाएगी, उनके ऊपर, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा, उनके ऊपर डिबेट होगी इन दिस 0 hour। जैसे इस अभी क्या है सेशन में, आप बताओ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जिनके ऊपर 0 hour में डिस्कशन हो सकती है। एक तो क्या है, दिस नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी। दूसरा हम न्यूज में क्या देख रहे हैं, दिस राम मंदिर थेफ्ट हुई है, राइट, उसके ऊपर क्या है, क्वेश्चंस एंड डिस्कशन कुड बी रेज्ड इन दिस 0 session। और कौन कौन से टॉपिक्स पे हो सकती है आपने बताना है। एक दो अच्छे अच्छे टॉपिक्स कमेंट करना जिनके ऊपर 0 hour में क्या है डिस्कशन हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट इश्यूज होने चाहिए और करंट रेलेवेंस के होने चाहिए, राइट। तो ये होगा आफ्टर 0 hour। तो क्वेश्चन आवर के बाद में हम कहाँ पे मूव कर गए, 0 hour। तो जैसे उसके बाद 0 hour के बाद क्या है, एजेंडा ऑफ द डे स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इज एजेंडा ऑफ डे, तो हर डे का कुछ एजेंडा होता है कि आज एक्स वाई जेड बिल डिस्कस करने हैं। तो जो भी कोई अगर कोई बिल जो है उसको प्रेजेंट करना है तो किया जाएगा। अगर एजेंडा ऑफ द डे है कि इस बिल के ऊपर डिस्कशन करनी है तो डिस्कशन होगी। अगर एजेंडा ऑफ द डे है कि इसके ऊपर वोटिंग होनी है तो वोटिंग होगी। तो जो भी एजेंडा ऑफ डे होगा उसको क्या है 0 hour के बाद इनिशिएट किया जाएगा, राइट। सो वंस एवरीथिंग इज डन, और अब क्या है छुट्टी करनी है और सब जो एमपीज है उनको कहना है कि अब जाओ, बाद में आना या कल आना, राइट। तो उसके बाद में तो सेशन को एंड कैसे करते हैं तो वो भी देखना है, हाउ द सेशन वुड बी एंडेड। तो सेशन को सिटिंग को कैसे एंड करेंगे, सॉरी, आज की जो मीटिंग है उसको एंड करना, तो उसके लिए क्या है, कौन एंड करेगा। तो अगर लोकसभा है तो स्पीकर, और अगर राज्यसभा है तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये क्या करेंगे, हाउस को क्या करेंगे, बोलेंगे हाउस इज एडजर्न्ड, कि आज की कार्रवाई खत्म होती है। एंड देन दे विल गिव अ फ्यूचर का टाइम, डेट टाइम बताएंगे, राइट, किस दिन कितने बजे आप फिर से आ जाना फॉर द नेक्स्ट सिटिंग, राइट। तो हाउस को एडजर्न कर देंगे और साथ में क्या है नेक्स्ट डेट और टाइम बता देंगे टू एंड द सिटिंग। सो पूछ सकते हैं हु एडजर्न्स द हाउस, स्पीकर इन लोकसभा एंड चेयरमैन इन राज्यसभा। तो हाउस इज एडजर्न, तो उसके बाद में क्या सिटिंग खत्म हो जाती है और जो डेट टाइम दिया होता है उसके लिए नेक्स्ट टाइम फिर उस डेट को वो लोग फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। फिर से क्या, सबसे पहले क्वेश्चन आवर, फिर 0 hour, फिर एजेंडा ऑफ डे, फिर हाउस एडजर्न। तो ऐसे चलता रहता है कंटिन्यूसली सेशन में, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर दैट हाउ पार्लियामेंट फंक्शन, बिकॉज बार बार अभी पार्लियामेंट इज इन सेशन तो बहुत सारी चीजें आएंगी, ये हुआ वो हुआ, तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो ऑपोजिशन स्टॉल्स पार्लियामेंट फॉर सेकेंड डे ओवर नीट पेपर लीक पेपर एंड पुलिस क्रैकडाउन। तो ये जो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस चल रही है इन द 0 hour, तो उसके ऊपर क्या हाउस एडजर्न हो गया। सो यहाँ देखिए, एज सुन एज द लोकसभा असेंबल्ड फॉर क्वेश्चन आवर, तो जाते क्या होगा क्वेश्चन आवर, ऑपोजिशन मेंबर्स स्टार्ट रेजिंग स्लोगन्स ओवर द एलिजेड नीट पेपर लीक। तो उन्होंने क्या है, अभी क्वेश्चन आवर है तो स्लोगन तो नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए था बेसिकली, राइटफुली क्या बनता था, क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो वो नहीं हुआ। और आपने क्या है स्लोगन्स रेज करने शुरू कर दिए अकॉर्डिंग टू फॉर दिस। तो क्या होगा, इससे क्या हो गया, इनडिसिप्लिन क्रिएट हो गया। तो व्हेनेवर देयर इज इनडिसिप्लिन इन द हाउस, द हेड ऑफ द हाउस कैन एडजर्न द हाउस, राइट। तो वो इसीलिए उन्होंने क्या है हाउस को एडजर्न कर दिया, because there was no discipline in the house, because members started raising what slogans। तो क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछने थे वो नहीं हुआ, तो इसीलिए क्या है हाउस वाज एडजर्न। Okay, next is a sad news. So it is related to Sikkim. So toxic gas killed 20 in Sikkim tunnel, 5 workers still under the
ट्रैप। तो वहां पे क्या है, एक टनल में विच वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर दिस नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, दिस टीस्टा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसके लिए क्या है, देयर वाज अ टनल वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। उसमें क्या है, एकदम से दिस मीथेन गैस वाज लीक्ड, राइट। तो उसकी वजह से क्या है, स्मोक हो गई और जो है डेंस स्मोक वाज फॉर्म्ड, और जो वर्कर्स हैं वो ट्रैप हो गए, एंड 20 हैव बीन killed और 5 are still trapped. तो rescue operation is under the way. So it is a very very sad news. तो अभी क्या है, चीफ मिनिस्टर is saying that इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी टू ascertain the cause of the incident. I don't know, बाद में आप इंक्वायरी कमेटी बिठा देते। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन इतना प्रेशियस लाइफ इज इन्वॉल्व, तो स्टेप्स शुड बी टेकन बिफोर हैंड। बाद में कमेटी से क्या होता है। Okay, so next question, let's move on to this Assam NRC. Supreme Court notice to center on petition seeking appeal process. तो क्या हुआ है, Supreme Court on Tuesday sought responses from the center. तो Supreme Court ने आंसर मांगा है किससे, सेंटर से, and others on pleas seeking direction to authorities to initiate an appeal process for those excluded from the NRC. तो एनआरसी एक कुछ पब्लिश हुआ, समझेंगे एनआरसी क्या होता है, राइट। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस पब्लिश हुआ कहाँ पे, असम में, राइट। उसमें से कुछ लोग क्या है, हैज बीन एक्सक्लूडेड। अब वो लोग अपील करना चाह रहे हैं, और अपील के लिए प्रोसेस इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि यहाँ पे अपील करो, वो कुछ नहीं आ रहा है, राइट। वो सेटअप नहीं हो रहा है, तो उसी के लिए क्या है, द एक्सक्लूडेड पार्टीज एज व्हाट अपील्ड की हमें सुप्रीम कोर्ट के पास दे हैव गॉन। तो उसके लिए ही सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द डायरेक्शन टू द नोटिस कि कहाँ है आपका ये, कहाँ करना है अपील। लोगों ने जो है एक्सक्लूड हुए, उनका राइट टू अपील है, दैट इज बीइंग वायलेटेड। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग देम, राइट। सो फॉर दोज हु हैव एक्सक्लूडेड, देयर इज अ प्रोविजन फॉर अपील, बट नथिंग इज हैपनिंग, ही सेड, adding a separate petition raising a similar issue was already pending before the apex court, right. so they're saying कि इसके ऊपर हमने पहले भी petition डाला है, फिर से डाल रहे हैं। so क्या है, the NRC which is going on in Assam, तो उसमें क्या है, approximately 19 lakh applicants has been excluded. तो big number of people has, एक दो नहीं है, 19 lakh applicants है जिनका नाम एनआरसी भी नहीं आया। तो थोड़ा सा समझते हैं व्हाट इज दिस एनआरसी, फिर आपको इजीली ये टॉपिक समझ आ जाएगा। So what is NRC? NRC stands for National Register of Citizens. तो नाम से क्या समझ आ रहा है, एक रजिस्टर है, एक लिस्ट है, किसकी, ऑफ द सिटीजन। तो सिटीजन्स का रिकॉर्ड रखने के लिए क्या है, एक रजिस्टर बना रहे हैं, एक नाम लिखने के लिए एक लिस्ट आती है जिसको बोलते हैं एनआरसी। ये एक्सरसाइज, ये लिस्ट अभी कौन सी स्टेट में बन रही है, इट इज बीइंग फॉर्म्ड इन व्हाट, असम में एनआरसी वाज कंडक्टेड, राइट। अब क्या हुआ, some people who are the citizens of India, who claim themselves to be the citizens of India, उनके नाम क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए, राइट। तो अगर आपका एनआरसी में नाम नहीं आएगा तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, इट शोज दैट यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यू कैन नॉट अवेल बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, यू कैन नॉट वोट, बिकॉज आपका नाम ही सिटीजन लिस्ट से निकाल दिया गया। तो कितने नुकसान हो सकते हैं, यू बिकम फॉरेनर इन योर ओन कंट्री, राइट, अगर आपका नेम इस लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए लोग क्या है, पीपल आर प्रोटेस्टिंग, they are saying that we are the legitimate what citizens of the country, but हमारा नाम निकाल दिया, हमारा नाम तो आया ही नहीं है। अब why this NRC is being prepared, right, वो समझते हैं। तो बेसिकली क्या है, 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था, a few days before we have also discussed that how in 1971 ईस्ट पाकिस्तान, जो कि हमारे दिस वाज वेस्ट बंगाल, एंड दिस रीजन जो अभी आज बांग्लादेश है, ये क्या था,
ईस्ट पाकिस्तान था, राइट। एंड फाइनली 1971 में दिस गॉट इंडिपेंडेंस एंड बिकेम व्हाट, बांग्लादेश, एज अ सेपरेट न्यू कंट्री बन गया अब 1971 में। तो जब 1971 में बांग्लादेश बन रहा था तो बहुत सारे लोग क्या है, माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया और दिस ईस्ट पाकिस्तान वाला रीजन, यहाँ से बहुत सारे लोग क्या है माइग्रेट करके इंडिया में आ गए, राइट। तो इससे क्या हो गया, बहुत सारी इलीगल माइग्रेशन हो गई, कहाँ पे, बहुत सारे लोग कहाँ पे आ गए, असम में। फॉर एग्जाम्पल अभी आप खुद से सोच के देखो कि आपकी स्टेट में बहुत सारे लोग किसी दूसरी जगह से आ जाएं और आपके साथ रहना शुरू कर दें और आपकी रिसोर्सेज के साथ compete करना शुरू कर दें, आपकी जॉब्स के ऊपर compete करना शुरू कर दें, तो क्या है, लोकल पॉपुलेशन क्या है, प्रोटेस्ट करेगी। तो वही हुआ, असम की जो लोकल पॉपुलेशन थी, इट स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। एंड व्हाट वर दे प्रोटेस्टिंग, दे वर प्रोटेस्टिंग कि ये जो माइग्रेंट्स आए हैं बांग्लादेश से, इनको निकालो और इनको वापस बांग्लादेश भेजो, ठीक है। तो ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट है चलता रहा 1976 से लेके 1985 तक, दिस प्रोटेस्ट कीप ऑन गोइंग। तो सच लॉन्ग पीरियड के लिए पीपल वर प्रोटेस्टिंग कि बिकॉज एक दो माइग्रेंट्स नहीं आए थे, ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल लाइक माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। तो एक्सोडस कह सकते हो आप, एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट्स टुक प्लेस। तो असम में क्या है, लोकल पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड दे वर प्रोटेस्टिंग एंड फाइनली क्या हुआ, 1985 में डिसीजन केम। तो 1985 में गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, दैट एनआरसी वुड बी कंडक्टेड, कि हम एक लिस्ट बना लेते हैं। देखो आप ऐसे मतलब बार बार प्रोटेस्ट मत करो, क्या करते हैं, लेट्स मेक अ लिस्ट कि कौन कौन से जो है सिटीजन्स है, कौन कौन से लोग जो है सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उनका नाम असम की एनआरसी लिस्ट में डाल देते हैं। तो उसके लिए क्या है, और जिनका नाम नहीं होगा उनको क्या है, वो इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर हो जाएंगे और उनको क्या है, हम माइग्रेट कर देंगे बांग्लादेश में वापस, राइट। तो ये डिसाइड हुआ, एनआरसी बनाने का रीजन ये था, बिकॉज बहुत सारे लोग माइग्रेट करके बांग्लादेश से असम में आ गए, लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट का सोल्यूशन क्या निकला, एनआरसी, राइट। तो 1985 में डिसाइड किया गया कि असम में एनआरसी कराएंगे। तो कैसे, अब उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला, उन्होंने एक कट ऑफ डेट डिसाइड करी। क्या डिसाइड करी, कट ऑफ डेट। तो उन्होंने बोला 24 मार्च 1971 से पहले, इस डेट से पहले पहले जो इंडिया में हैं, राइट, इस डेट से पहले पहले जो असम में रह रहे हैं सिटीजन्स, ठीक है, लोग रह रहे हैं, वो क्या है, दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनको हम सिटीजनशिप दे देंगे चाहे वो बांग्लादेश से भी आए हैं, राइट, ठीक है। लेकिन अगर कट ऑफ डेट क्या है, 24 मार्च 1971, इस डेट से पहले पहले जो भी असम में रह रहा है उनको वी विल डिक्लेयर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। एंड उनका नाम किस में डाल देंगे, एनआरसी में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब आपको प्रूफ देना पड़ेगा, यू हैव टू प्रूव that you were living in India before this date। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यू हैव टू शो सम डॉक्यूमेंट जिससे ये साबित हो सके, जिससे प्रूव हो सके कि आप 24 मार्च 1971 से पहले पहले क्या थे, इंडिया में थे, राइट। तो ये प्रूव कर दोगे तो यू विल, आपका नाम किस में चला जाएगा, एनआरसी में चला जाएगा एंड यू विल बी डिक्लेयर्ड द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। तो इसके लिए वेरियस लिस्ट के आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी XYZ, एक लंबी लिस्ट है, उसमें से डॉक्यूमेंट में से कुछ भी प्रोड्यूस करके दिखा दो। एंड अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट की डेट बनने की इस डेट से पुरानी है, तो इट मींस यू आर व्हाट, द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। तो आपका नाम एनआरसी में इंक्लूड हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो उनको क्या है, एनआरसी से क्या कर दिया, क्या एक्सक्लूड। तो इफ यू डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट, यू आर नॉट एबल टू प्रूव कि आप इस कट ऑफ डेट को इससे पहले इंडिया में थे, तो आपका नाम क्या एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनआरसी से आपका नाम एक्सक्लूड कर दिया तो एकदम से आपकी ऑटोमेटिक आपकी सिटीजनशिप कैंसिल नहीं होगी, ये याद रखना है।
ये नहीं है कि लिस्ट में नाम नहीं आया तो एकदम से बस काट दो कि ये तो सिटीजन ही नहीं है। आपको क्या है, एवरीबडी हैज अ राइट टू अपील, तो आपको राइट टू अपील दिया गया अंडर द एक्ट। सो अगर आपका नाम एनआरसी से एक्सक्लूडेड है, यू हैव द राइट टू अपील, राइट। तो आप क्या है, फॉरेन, जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, हमने थोड़े दिन पहले भी इसके बारे में पढ़ा था, इसके पास क्या है, आप अपील करोगे एंड ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि वेदर यू आर सिटीजन और नॉट द सिटीजन, राइट। तो ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा बाय सीइंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स। तो अगर ये कह देता है दैट यू आर व्हाट, नॉट द सिटीजन, तो आप क्या है, फॉरेनर डिक्लेयर हो जाओगे। तो ये नहीं, आपका राइट टू अपील यहीं पे नहीं खत्म हो गया, आप यू कैन अपील टू हाई कोर्ट ऑल्सो, देन यू कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, बट फर्स्ट लेवल ऑफ अपील क्या होगा, दिस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। तो ये डिसाइड करेगा आपका सिटीजनशिप स्टेटस, राइट। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या हुआ। अब बहुत सारे लोगों का नाम क्या है, एनआरसी से एक्सक्लूड हो गया, तो उनको क्या है, राइट टू अपील, जैसे अभी मैंने बताया। बट दे आर सेइंग कि राइट टू अपील तो आपने हमें दे दिया, बट आप कोई फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल सेटअप ही नहीं करे, हम कहाँ पे अपील करें, राइट। अब एनआरसी से नाम जाने की वजह से दे आर नॉट able to avail so many services, so that is why they are protesting कि हमें क्या है, राइट टू अपील चाहिए, वी आर नॉट द इलीगल माइग्रेंट्स। तो ये काम डिसाइड करना किसका है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का है। देन अगर आप उनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं, यू कैन गो टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, राइट। तो कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स बताना फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है कौन से एक्ट के अंडर was set up, right। तो आई होप दिस इज क्लियर दैट एनआरसी, ये देखो ये लिस्ट 1985 में भी बनी थी, अब इसको क्या कर रहे हैं, बेसिकली एनआरसी वाज बीइंग अपडेटेड। तो ये जो नई अपडेटेड एनआरसी आई है उसमें लोगों का नाम नहीं आया, तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। Okay, so there another protest which is about to start again is the Punjab farmers. So Punjab farmers stopped en route to rally in Delhi return after assurances. तो क्या है, पंजाब फार्मर्स फिर से क्या है, प्रोटेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं अंडर द बैनर देश बचाओ मोर्चा। लाइक दे डिसाइडेड कि हम लोग भी दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करेंगे, बट दे वर स्टॉप्ड ऑन द इंटरस्टेट बॉर्डर बिटवीन हरियाणा पुलिस ने उनको रोक लिया एंड दे वर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू प्रोटेस्ट, जो अभी अपकमिंग यूएस इंडिया की ट्रेड डील होने वाली है, दे आर सेइंग दैट दिस इज गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल टू आवर एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर, तो हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा, तो इस डील के अगेंस्ट वी वांट टू प्रोटेस्ट, इसके लिए हमें दिल्ली जाना। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको क्या है, हरियाणा बॉर्डर पे ही रोक लिया और दिल्ली नहीं जाने दिया, और बोला कि आपके जो कंसर्न्स है सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाए जाएंगे, उनके साथ डिस्कस किए जाएंगे, आप हर बात पे प्रोटेस्ट मत करो एंड यू गो बैक होम। तो उससे एश्योरेंसेस मिलने के बाद में क्या, फार्मर्स रिटर्न आफ्टर एश्योरेंसेस, तो अभी तो वापस आ गए, बट दे आर सेइंग कि अगर कुछ फ्रूटफुल नहीं हुआ तो हम फिर से करेंगे। सो देखते हैं फ्यूचर में। Okay, let's move on to the next news. In yesterday's session, we have discussed कि MPK Assembly is presenting a bill to pass the UCC. एंड अभी आज हमने क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट इज द अपडेशन क्या हुआ है, एमपी असेंबली पासेस द यूसीसी बिल। तो याद रखने ना, एमपी हैज बिकम द सेकंड स्टेट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस टू हैव इट्स ओन यूसीसी, राइट। तो यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, जितने भी सिविल एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर क्या है, एक कॉमन कोड लगेगा, राइट। एंड इसमें दो तीन चीजें स्पेसिफिक हैं टू जो इनके यूपी सॉरी एमपी यूसीसी में है, जैसे इट इज क्रिमिनलाइजिंग पॉलीगैमी को, कि मल्टीपल हैविंग द प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल वाइफ्स, उसको क्रिमिनलाइज करा है। निकाह हलाला इन मुस्लिम्स, उसको भी इन्होंने क्रिमिनलाइज करा है। एंड इट हैज मेड ब्रॉडर गाइडलाइंस फॉर लिव इन रिलेशनशिप्स एंड had made mandatory to register if you are in a live in relationship, right। एंड ये भी याद रखना, ट्राइबल पॉपुलेशन को एक्सक्लूड किया है। हमने डिस्कस किया था दैट
ट्राइबल पॉपुलेशन के कल्चर को, राइट को प्रिजर्व करने के लिए क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर क्या है, ये यूसीसी नहीं लगेगा, राइट। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था। आज आपने स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में एक चीज और बतानी है मुझे। ट्राइबल पॉपुलेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में 2 शेड्यूल्स आर मेंशन्ड, राइट, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। एमपी के ट्राइब्स कौन से शेड्यूल के अंडर आते हैं? इज इट अंडर शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6? तो एमपी के जो ट्राइब्स हैं, दे आर गवर्न देयर एज पर विच शेड्यूल, राइट? तो आपने बताना है कौन से शेड्यूल में एमपी के ट्राइब्स का मेंशन है। इज इट शेड्यूल 5 और इज इट शेड्यूल 6, राइट? सो कमेंट सेक्शन में आपने आंसर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द रोड सेफ्टी। तो एक रिपोर्ट आई है, रोड्स, द लेटेस्ट डेटा है रोड एक्सीडेंट्स पे कितने हो रहे हैं इंडिया में। सो इट हैज रिकॉर्डेड 1,77,175 रोड डेथ्स का नंबर आया है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने रिपोर्ट रिलीज करी है। सो दे आर सेइंग दैट देयर बिकॉज रोड सेफ्टी और रोड एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे थे, तो गवर्नमेंट हैज व्हाट amended the just a second, amended the motor vehicle act। तो मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंड किया था 2019 में, और एक बोर्ड बनाया था जिसका नाम था नेशनल बोर्ड फॉर रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया था। So this National Board for Road Safety was set up under this Motor Vehicle Act में amendment करके, right? And this board was set up in 2021 and अभी क्या है 2026, तब से इसको बनाया, but अभी क्या है, इन पेपर पे ही बना है, right? देखने को ऑन ग्राउंड नहीं मिल रहा। तो वही this news is talking about that the move was to set up a statutory board tasked with advising the center and states on the road safety, which was a welcome institutional step. But what they're saying that एंड कौन एक कमेटी ने रिकमेंड करा था, वो भी याद रखना है, सुंदर कमेटी ऑफ 2007। तो एक कमेटी बनी थी, सुंदर कमेटी, इन 2007। इसने भी सजेस्ट किया था नेशनल बोर्ड फॉर रोड सेफ्टी होना चाहिए टू प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स, मॉनिटर एंड कंप्लायंस ऑफ द रोड सेफ्टी की बात के लिए। बट दे आर सेइंग दैट मई 2026 की बात है, तो द सुप्रीम कोर्ट प्रेस द सेंट्रल गवर्नमेंट टू operationalize the national board for road safety, saying that although the statutory provision had come into force and rules have also been notified in 2021, the board itself has not been constituted। तो आप देख सकते हो, सिर्फ पेपर में there is a board, on ground there is what is reality, nothing। तो क्या है, लोगों की लाइफ की कीमत नहीं है ना। ओके, let's move on to the next news article, and this is also a sad news, a tragedy, जिसमें एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर, 26 old merchant navy officer Akhil Johan from the Kerala was killed in a alleged Russian missile attack on the cargo vessel by the name MV Golden Leo, right? तो ये इट वाज क्रॉसिंग नियर द यूक्रेन। यूक्रेन के कौन से पोर्ट का नाम याद रख सकते हो? ओडेसा पोर्ट। पहले भी ये बहुत बार न्यूज में रहा है। इस पोर्ट के पास ये शिप जा रही थी, एमवी गोल्डन लियो, एंड इसमें जो इसके ऑफिसर थे, इसमें मर्चेंट नेवी ऑफिसर अखिल जोहन, ही हैज लाइक बीन किल्ड इन अ मिसाइल अटैक, जो रशिया ने वाज रशिया का मिसाइल अटैक था, राइट? तो यूक्रेन पे दे वर अटैकिंग, एज यू नो यूक्रेन रशिया वॉर हैज बीन ऑनगोइंग। तो उसमें क्या है, एक इंडियन जो है कैजुअलिटी हो गई है, तो उसके रिलेटेड ये न्यूज थी। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज।
as we were discussing again and again that Jammu and Kashmir state government has been what pressing for statehood, and they were protesting. So they also have like protested in New Delhi. So then and they're saying that they will continue this protest until and unless the statehood has been restored to the state. So that is why it was again in news. Okay. So there is a latest updation in the case of Sonam Wangchuk. So we were seeing that he was sitting on a hunger strike. Then he was taken to Safdarjung hospital to ensure कि उनकी जो health और deteriorate ना करे, right? And उसके बाद में हमने देखा था कि उनकी wife was has filed a petition कि he should be moved to the hospital of his choice, not सफदरजंग में उनको restrict ना करके रखें. तो पहले तो deny कर दिया था, लेकिन अब क्या है? Latest updation ये है that court has directed that Mr. Wangchuk, who has been on a 24-day hunger strike, तो अभी 24 days हो गए, in solidarity with Cockroach Janata Party student protest, be immediately shifted from Safdarjung to Medanta Hospital. तो ये उनकी choice का hospital है. So it was necessary to ensure his safety and protect his fundamental right under Article 19 and 21 के अंडर क्या है, उनको उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है. एंड he has been what shifted to the hospital of his choice. Then उस पिटीशन में his wife has asked कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, एंड उसमें क्या अभी कोर्ट ने इस चीज के ऊपर भी डायरेक्शन दिया है that during his treatment it would be further directed to the subject to the medical protocol that Miss Angmo would be permitted to visit her husband whenever she desires. तो उनको क्या है, मिलने की परमिशन भी दी गई है. So this is the latest updation in this case. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. एंड दिस इज वही जो अभी हमने न्यूज पढ़ी थी दैट मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैज बीन किल्ड. तो क्या है, रशियन एनवॉय समन्ड ओवर द डेथ ऑफ इंडियन क्रू. तो क्या है, रशियन एनवॉय को समन किया है हमने. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द एडिटोरियल पेज. एंड एडिटोरियल पेज में भी एक दो चीजें तो रेपिटेटिव ही हैं. तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, आज हमने पढ़ी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, जो एनआरसी चल रही है कहाँ पे, इन असम. एंड कंट्री लेवल पे भी एक एक्सरसाइज चल रहा है, दैट इज द सर एक्सरसाइज, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ व्हाट, दिस इज फॉर द इलेक्टोरल रोल्स का जो है रिवीजन चल रहा है, अपडेशन चल रही है वोटर लिस्ट की, राइट. अंडर दिस एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन द जो चल रही है ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, राइट. अभी क्या हुआ, इसमें दो तीन चीजें देखने को देखी, दैट स्पेशली इन वेस्ट बंगाल का केस हम डिस्कस करते हैं. दैट वेस्ट बंगाल में क्या हुआ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो कुछ लोगों के नाम है जो पहले वोटर लिस्ट में थे, बाद में क्या हो गए, जो अपडेटेड ये एसआईआर आया उसमें क्या है, उनके वोटर लिस्ट में उनके नाम क्या थे, नहीं थे, दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम वोटर लिस्ट, राइट. अब उनके नाम मिसिंग है. तो क्या हुआ, इन्होंने वेस्ट बंगाल में क्या देखने को देखा गया, दैट जिन लोगों के नाम एसआईआर लिस्ट में नहीं आ रहे हैं उनको वेलफेयर स्कीम के बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं, राइट. तो वेलफेयर स्कीम के बेनिफिट्स उनको डिनाई किए गए. तो उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट हैज गिवन अ जजमेंट दैट यू कैन नॉट लिस्ट दिस इलेक्टोरल रोल का जो एसआईआर एक्सरसाइज है, यू कैन नॉट like link it to the distribution of the welfare benefits to the citizen, because they are saying that isme these two are completely two different things. So they're saying that this SIR outcomes for any other purpose than determining the voting right is not permitted. So court has now issued notice to the election commission, West Bengal government, and कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, because they are saying that there is a actually a legal paradox जो इसमें exist कर रहा है between the citizenship and electoral role. They're saying that all those who are enlisted as voter must be citizen. तो जिनका भी नाम
इलेक्टोरल रोल्स में है, जिसमें जिनका लिस्ट में नाम है, मतलब जो क्या है, वोटर्स हैं। अगर वो वोटर है, इलेक्टोरल लिस्ट में उनका नाम है, इट मींस वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हु कैन वोट, सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट। तो अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल्स में है, इट मींस यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। बट अदर वे अराउंड एक जरूरी नहीं एग्जिस्ट करे, जरूरी नहीं है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो और आपका नाम वोटर लिस्ट में भी हो ही हो, राइट? आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं भी हो सकता। तो इन अ वे वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, ये आपकी सिटीजनशिप का स्टेटस डिफाइन नहीं करता। दिस इज व्हाट द एडिटोरियल इज टॉकिंग। अगर वोटर लिस्ट में नाम है, फिर तो आप, दैट शोज दैट यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। बट अदर वे अराउंड इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बिकॉज यू आर सिटीजन और किसी वजह से आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आपने अपनी वोट डिलीट कर दी, राइट? यू आर वोट आपकी क्या है, you are not in the electoral rolls, doesn't mean that you are not the citizen, right? So on this basis, on this simple logic, they are saying that just because कि SIR में उनका नाम नहीं है और आप उनको क्या है, वेलफेयर बेनिफिट्स डिनाई कर रहे हो जो सिटीजन ऑफ इंडिया को मिल रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। ये आप नहीं कर सकते हो। जो ये एक्सरसाइज कर रहे हो आप, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, ये सिर्फ इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करने के लिए है, ये लोगों का सिटीजनशिप डिसाइड करने के लिए नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने हैज सेड इन इट्स जजमेंट वेरी क्लियरली। रिसेंटली हमने देखा था दैट देयर सेड दैट ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर बेसिकली फॉर अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। आप इलेक्टोरल रोल्स का अपडेशन कर रहे हो, बट नॉट टू डिसाइड सिटीजनशिप स्टेटस। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसके ऊपर? उन्होंने बोला ये जो इलेक्टोरल रोल का अपडेशन है, ये किसका काम है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, राइट? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इस साल ये बहुत न्यूज में है, तो आपने आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करवाना और इलेक्टोरल रोल्स की प्रेपरेशन और उनकी अपडेशन कराना। लेकिन to decide the citizenship is not the power of the and not the job of election commission of India. This is what, this is the job of parliament. Parliament through the law can decide the citizenship status of a person, right? So constitution under article 5 to 11 part 2 of the constitution talks about the citizenship rights of the Indians, and it talks and it empowers parliament to what, frame a law to decide the citizenship status of the पीपल, राइट? तो सिटीजनशिप का स्टेटस आप उसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के साथ लिंक नहीं कर सकते हो, बिकॉज इलेक्शन कमीशन का काम बस इतना है कि इलेक्टोरल रोल बनाए कि कंट्री में कौन कौन वोट कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल वोटर है, और उनकी लिस्ट तैयार करे। कौन इंडिया का सिटीजन है, कौन इंडिया का सिटीजन नहीं है, ये किसका काम है? ये डिसाइड करना काम है लॉ के थ्रू, और वो लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है। दैट इज व्हाई अगेन एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट आप जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, इसको इस चीज से लिंक नहीं करो कि कोई सिटीजन है कि नहीं, और उसके बेसिस पे आप बेनिफिट्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। दीज टू आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। यू आर नॉट supposed to link these things. This is something which is the crux of this news article. So I hope this is clear. Okay, let's move on to the next news article, which is talking about the a report which has been published by on World Population Day. तो first of all याद रखना है World Population Day कब होता है. So this is important. World Population Day. It is celebrated every year on 11th of July. Right? तो उसकी उसमें कुछ सर्वे किया गया था एंड लोगों से पूछा गया था, यंग पीपल, दैट व्हाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग चिल्ड्रन और हैविंग फैमिली, राइट? तो वो बच्चे क्यों नहीं चाह रहे हैं, आज की यंग पॉपुलेशन, तो उसके रिलेटेड क्या है ये क्वेश्चन थे।
एंड अभी क्या है उसका उसके एनालिसिस के लिए एक ये आर्टिकल पब्लिश किया एंड दे आर सेइंग दैट द आंसर्स आर डिफरेंट एंड इट इज नॉट दैट द यंग पॉपुलेशन टुडे डज नॉट वांट चिल्ड्रन, दे आर सेइंग द रीजन इज समथिंग एल्स, राइट? So let's see ki what it is saying, that what Indian young people are saying about families. So they're saying on World Population Day, a survey, the largest of its kind, was conducted across 73 countries, asking a simple question, whether young people still wanted partnership and families and what stood between them and it. That whether young people are still looking for marriages, partnerships, and still wanting to have a family, and if not, so what is the reason, right? So they are saying that फर्स्ट ऑफ ऑल इट टॉक्स अबाउट द फर्टिलिटी रेट के बारे में हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया, दैट इंडिया का फर्टिलिटी रेट हैज नाउ सेटल्ड एट 2 चिल्ड्रन पर वुमन। तो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से हमारा क्या है, कम हो गया है, ये भी हमने याद रखना है। देन दे आर सेइंग दैट द शेयर ऑफ यंग वुमेन मैरिड बिफोर 18 इयर्स हैज फॉलन फ्रॉम 23% टू 20%। तो ये क्या है, यंग विमेन, पहले क्या होता था, विमेन वर नॉट स्टडिंग, राइट? तो लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, जैसे वो 14-15 की होती थी उनकी चाइल्ड मैरिज कर देते, राइट? अब ये ट्रेंड क्या है, कंपैरेटिवली कम हो गया, तो चाइल्ड मैरिजेस आर फॉलिंग डाउन एंड क्या है, विमेन आर गेटिंग एजुकेशन। तो ये एक वेलकम स्टेप है, जिसकी वजह से क्या है, marriages are getting delayed, and marriages are getting delayed तो क्या है, number of children a woman is producing in her lifetime is also decreasing, right? तो next क्या है, कुछ और कारण भी यहाँ पे mentioned है। So when we ask young couple what stand between them and the life they picture, the answer was almost always practical. So they're saying that money, first of all the reason was money, that everything is becoming very very expensive, inflation है, तो फैमिली को रेस करना, बच्चों को रेस करना इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, फर्स्ट थिंग। देन हाउसिंग has been a big issue, then job security, and then a very simple human worry, how well we can care for our children। तो ये कुछ reasons की वजह से they are what saying that we are thinking have whether to have a family or not, because a family is a like taking care of your family is a full time job, उसमें छुट्टी नहीं है। Okay, then for women also they have presented data that पहले क्या थी, women used to like be at home and take care of the family and the children, but अब क्या है, women के ऊपर double burden हो गया, women is going out and working as well, and at the same time it is also taking care of the family, and family की जो वो take care कर रही है और बच्चों को जो raise कर रही है, उनमें उनको क्या है, हेल्प कम मिल रही है फ्रॉम द मेल काउंटर पार्ट्स इन मैक्सिमम केसेस, तो उसकी वजह से भी क्या है, विमेन आर प्रेफरिंग कि मेरा बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उस चीज को सोचते हुए समटाइम्स वुमेन अवॉइड हैविंग फैमिली, बिकॉज ये सेइंग कि चॉइस करना पड़ेगा करियर और फैमिली के बीच में, दोनों को एक साथ चलाना डिफिकल्ट हो रहा है, राइट? तो दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग, दैट आउट ऑफ that young women in India spend over 5 hours a day on unpaid housework and caregiving। तो घर पे वो जो काम कर रही है उस पे भी उसको 5 hours लग रहे हैं, whereas when we compare it to young men they spend about half an hour on household work। तो देखो ना, 8 घंटे की जॉब करके आए, देन घर पे भी 5 घंटे आपको बच्चे का भी ध्यान रखना है, बच्चे का होमवर्क भी करवाना है, सुबह बच्चे को स्कूल भी भेज के जाना है, एंड पूरे एक्सटेंडेड फैमिली का भी ध्यान रखना है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच क्या है, मेन पे के नहीं है, राइट? तो शी इज व्हाट also like facing this double burden, that is why they explain that so many capable young women feel that they must choose between a career and a family, so sometimes they are forced to make a choice। So that is why also educated young Indians are now avoiding having children। then they are saying that there is a high unemployment rate, तो unemployment rate की वजह से भी क्या है, marriages are getting delayed, तो marriages are getting delayed, उसके बाद क्या हो रहा है, there is a mental pressure also when you are getting late marriage, and late marriages क्या है, एक biological clock भी आपकी चल रही है, right? तो you can have like what biological issues जिसकी वजह से fertility rates can
fall down, लाइफस्टाइल कैसा, इतना स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है जॉब के लिए, लाइक प्रिपेयर करना, लाइक फाइटिंग फॉर जॉब, राइट? तो वो क्या है, स्ट्रेसफुल मेंटल हेल्थ की वजह से भी क्या है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी डिटेरियोरेट हो रही है, द फर्टिलिटी रेट्स कैन फॉल डाउन, तो वो भी एक चीज है। देन अनएम्प्लॉयमेंट से ये भी कि यू आर नॉट गेटिंग द जॉब, सो यू आर प्लानिंग नॉट टू गेट मैरिड एंड नॉट टू हैव अ फैमिली, बिकॉज यू आर सेइंग, फीलिंग दैट मैं खुद का भी आई कांट रेज माई सेल्फ, so how will I raise a family, right? So this is also a reason, right? So then they are saying that what is the solution to this? So they are saying that what we require is a high quality, affordable, accessible childcare. When there exists affordable and accessible childcare and families that share care giving more equally, तो equity है उस चीज में भी, continued investment in stable dignified work for young people entering the labor force, and greater attention to the mental health of youth, including climate anxiety, conservation, conversation about the families and future, then only we can like ensure that younger population feels safe and get the courage to like say yes to having families, right? So this is something the views of the author as mentioned in the article. So I hope this is clear. So let's move on to the next news, and this is again something we have already discussed many times. So new pact is a win-win for India and UK. So we have seen that India और UK में क्या एक comprehensive economic trade deal has been signed, free trade agreement होगा, right? जिसमें क्या है approximately 99% of जो प्रोडक्ट्स है इंडिया के, उनके ऊपर क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज क्या है, कम हो जाएंगी, एंड ये क्या एक तरीके से हमारे जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसके लिए बूस्ट है, एंड लेबर इंटेंसिव और जो इंडस्ट्री है उसके लिए स्पेसिफिकली इन द लेदर, फुटवेयर, टेक्सटाइल, जेम एंड ज्वेलरी, ये सब इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी to lie upon, right? So then it is also saying that services के sector में भी हमारे लिए अच्छा होगा, right? Then they are saying कि again all these things also offer an opportunity to the medium and the micro small enterprises as well. But कल भी हमने एक चीज डिस्कस करी थी that we are saying कि उनके लिए opportunities create हो रही है, लेकिन ये opportunities को avail करने के लिए they will have to comply with the rule and regulation, and they have to follow the regulatory requirements, they have to produce the required documents to avail all these benefits जो sometimes इनके पास नहीं होते हैं. So that is also something which should be kept in mind कि क्या ये लोग avail कर पाएंगे benefit कि नहीं, right? So this is what the article is trying to discuss. Okay, so let's move on to the last important issue of the day, which is from the judiciary sector, and it is about the a case of a judge's removal and resignation. So it is asking, is Jashwant Verma still a judge? तो अगर आपको याद हो that this person Jashwant Verma was in news due to a controversy because इनके घर पे क्या थे, partially burnt notes were found, and उसके बाद क्या है, इनके ऊपर corruption और मिस appropriation के charges के ऊपर क्या है, he was in news, right? तो उसके बाद क्या हुआ था, this person resigned आफ्टर द एलिगेशंस ऑफ करप्शन. तो क्या है, बर्न्ड करेंसी नोट्स मिले इनके घर पे, तो करप्शन चार्जेस हो गए. इससे पहले कुछ होता, दिस पर्सन रिजाइंड, राइट? तो अभी क्या है, लेकिन क्या है, पार्लियामेंट ने एज पर द प्रोसीजर इनके ऊपर क्या है, इम्पीचमेंट स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया था. तो इंक्वायरी कमेटी बिठा दी थी. अभी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, राइट? इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले दिस पर्सन रिजाइंड. तो ये सब कुछ हुआ, क्या हुआ, उनके घर के ऊपर घर में क्या बर्न करेंसी नोट्स मिले, जिसके बाद क्या है, उनके ऊपर क्या है, इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई. इससे पहले कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आती है और इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है या पता चलता है कि उन्होंने वाज ही इन्वॉल्व और नॉट, कुछ भी इंफॉर्मेशन आने से पहले ही दैट पर्सन रिजाइंड, राइट?
तो अभी क्या है, इस प्रोसेस का क्या होगा, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस प्रोसेस, ये हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। एंड इट इज ऑल्सो सेइंग दैट व्हाई इट इज सेइंग दैट इज जशवंत वर्मा स्टिल अ जज, तो वो भी हम देखते हैं, राइट। तो व्हाट, लेट्स रीड। So they're saying that Mr. Verma continues to be listed on the Allahabad High Court. तो किस हाई कोर्ट को बिलोंग करते थे, he was from इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो क्या है, उनके रेजिग्नेशन के बाद अभी भी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उनके ऊपर उनका नाम एज अ शो कर रहा है एज अ जज, लाइक, तो अभी भी उनका नाम वहां पे एक्टिव शो कर रहा है। एंड इवन इन द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, इट इज नॉट दैट स्टेट गवर्नमेंट इज इनएफिशिएंट। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सिचुएशन भी देखो, वहां पे भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में उनका नाम अभी एज अ जज इज स्टिल एग्जिस्टिंग थ्री आफ्टर इवन आफ्टर 3 months ऑफ हिज रेजिग्नेशन। तो व्हाट इज दिस, तो कहते हैं अब क्या, इससे क्या मतलब निकालें कि क्या वो अभी भी जज है, राइट। सो अभी क्या है, एंड देन दूसरी चीज एट द सेम टाइम, फ्रॉम द बाय आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द जजशिप, ही दैट पर्सन इज व्हाट डिसाइडेड टू रिज्यूम हिज प्रैक्टिस एज अ एडवोकेट, एंड उन्होंने अपना बार काउंसिल पे दोबारा पे अप्लाई किया। एंड अभी क्या है, बार काउंसिल पे भी उनका स्टेटस एक्टिव शो हो रहा है। तो हाउ कैन पर्सन बी अ एडवोकेट एंड जज एट सेम टाइम, तो वो चीज भी क्या है, तो आप अपडेशन ही नहीं कर रहे हो, राइट। तो देर सेइंग कि क्या मतलब उनका नाम अभी भी शो हो रहा था, क्या वो जज है, दूसरी तरफ उनका बार काउंसिल पे भी एक्टिव दिखा रहे हो आप, तो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई आर यू नॉट अपडेटिंग योर सिस्टम। Then it is saying that is Verma's resignation subject to the acceptance by president? तो ये भी एक क्वेश्चन है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो क्या उनका रिजाइन कर देना ही इनफ है? क्या ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि प्रेसिडेंट उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता है तो वो उनका रेजिग्नेशन माना जाएगा, या वो खुद से अपनी फ्री विल से क्या है रिजाइन कर सकते हैं? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका स्टूडेंट्स आपको आंसर पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में 13 ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो अपनी विल पे रिजाइन कर सकते हैं, और खुद लिखा दैट आई वांट टू रिजाइन, साइन किया और सबमिट किया, तो रेजिग्नेशन इज डन। ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, वो अपनी विल पे रिजाइन कर रहे हैं। एंड उसी में judges of Supreme Court and judges of High Court are also the part of that 13 functionaries जो अपनी will पे जो क्या है रिजाइन कर सकते हैं, जिनको ये वेट करने की जरूरत नहीं है कि वो प्रेसिडेंट उनका एक्सेप्ट करे रेजिग्नेशन। सो दे आर सेइंग दैट ऑफिसेस लाइक प्रेसिडेंट, Vice President of India, Deputy Chairman of Rajya Sabha, Speaker and the Deputy Speaker of Lok Sabha, a Judge of Supreme Court, a Judge of High Court, Governor, Speaker, Deputy Speaker of State Assembly, Chairman, Deputy Chairman of State Council and Members of Public Service Commission, ये सारे कैटेगरी के लोग जो क्या है अपनी फ्री विल पे रिजाइन कर सकते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट कि प्रेसिडेंट इनकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करे। वेयर एज अगर कोई एमपी रिजाइन करता है तो उनकी रेजिग्नेशन अगर स्पीकर एक्सेप्ट करेगा या चेयरमैन एक्सेप्ट करेगा तभी उनकी रेजिग्नेशन विल कम इनटू फोर्स। तो ये एक डिफरेंस आपने याद रखना है। देन इसी के ऊपर जो एक जजमेंट भी आई थी सुप्रीम कोर्ट की इन 1978 इन द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गोपाल चंद्र मिश्रा केस। तो ये केस इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, गोपाल चंद्र मिश्रा केस, जिसमें यूनियन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस टू रिजाइन एट विल, कि ये वो खुद से कभी भी रिजाइन कर सकते हैं, ये देयर रेजिग्नेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू द एक्सेप्टेंस बाय द प्रेसिडेंट। तो ये याद रखना है आपने, राइट। अभी क्या है, नाउ वी हैव टू डिस्कस द रिमूवल प्रोसेस। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि उनका रिमूवल प्रोसेस तो चल रहा था, उन्होंने रिमूवल प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही क्या है रिजाइन कर दिया। तो अब क्या, इट मींस आप कुछ गलती करो, जुडिशरी कुछ गलती करे उसके बाद में रिजाइन कर दे, एंड इज इट ओवर? तो वो भी एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर क्या है, विच रिक्वायर्स अ लाइक डीपर थिंकिंग, कि ये क्या है जुडिशरी को अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या है, there is a lack of accountability, so there should be a procedure to make them accountable, right? थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करते हैं द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज इन इंडिया।
So we'll discuss the removal of judges in India. The how the judges are removed in India, right? पहली बात इनके removal process को क्या बोलना है? Impeachment. What is the process called? Impeachment. So when a judge can be impeached, when a judge can be removed, क्या उनके कुछ grounds हैं? So yes, grounds are mentioned. तो कॉन्स्टिट्यूशन में दो ग्राउंड्स मेंशन है इन कॉन्स्टिट्यूशन, किन बेसिस पे उनको क्या रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम देयर पोजीशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट टू ग्राउंड. फर्स्ट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर. What are the two grounds? First is proved misbehavior and second is incapacity. That person is now be incapable to be the judge, right? तो इन दो grounds पे a judge can be removed. But ये चीज भी पूछी जा सकती है, are these terms defined in the constitution? No, not defined. तो what do you mean by proved misbehavior when it is that you are incapable? इसका कोई exact definition constitution में mention नहीं है, बस दो grounds mention है जिसके basis पे किसी judge को क्या है remove किया जा सकता है through the process of impeachment. And what are those grounds? First is proved misbehavior and second is incapacity. Oh sorry, not incapability, incapacity. Just a second. Make a correction, student. It is incapacity. Incapacity to be the judge, right? So for on these two grounds a judge can be what impeached. अब process में क्या होगा? What is the whole process? So in detail तो constitution में mention नहीं है, right? तो constitution में क्या mention है? Parliament can decide the process. तो उसके लिए है parliament ने एक judges inquiry act पास किया था. So Judges Inquiry Act 1968 in detail discuss the process to remove the judges, right? तो पूछ सकते हैं कौन से एक्ट के अंडर जजेस की रिमूवल का प्रोसेस मेंशन है, तो इट इज जजेस इंक्वायरी एक्ट, राइट? तो दे आर सेइंग दैट अगर किसी जज के ऊपर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के चार्जेस हैं तो उसके लिए क्या इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड ये प्रोसेस कहाँ पे होगा? इट विल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट, राइट? तो पार्लियामेंट में क्या है, कौन से हाउस में स्टार्ट होगा? तो क्या ये लोकसभा में ही स्टार्ट हो सकती है ये प्रोसीडिंग्स? तो ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है. इट कैन स्टार्ट इन एनी हाउस. इट कैन इनिशिएट इन लोकसभा एंड इट कैन ऑल्सो इनिशिएट इन राज्यसभा, राइट? तो कोई भी हाउस इसको इनिशिएट कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है. एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? If it is introduced in Lok Sabha, it requires the support of 100 members. And if it is initiated in Lok Sabha, it requires the support of 50 members of Rajya Sabha. Right? तो इतने लोग अगर लोकसभा में स्टार्ट करना तो आपको 100 जो एमपीज हैं लोकसभा के उनका सपोर्ट चाहिए, और अगर आपको राज्यसभा में स्टार्ट करना है तो 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए. ये एक लिख के देंगे एंड दे विल सबमिट इट टू स्पीकर. अगर लोकसभा है तो स्पीकर को सबमिट करेंगे दिस नोटिस, एंड अगर राज्यसभा है टू द चेयरमैन. सो इफ द स्पीकर फील्स राइट एंड चेयरमैन फील्स राइट एंड ये इस नोटिस को, इस जो इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने की ये जो सबमिशन है इसको एक्सेप्ट करते हैं, इनके एक्सेप्ट करने के बाद ही क्या है ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है स्टार्ट होगा. सो आई होप यहाँ तक क्लियर है. कहाँ मेंशन है? जजेस इंक्वायरी एक्ट में मेंशन है. कहाँ प्रोसेस होगा ये इनके रिमूवल का डिस्कशन? पार्लियामेंट में. कौन से हाउस में हो सकता है? किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, दोनों में डिस्कस होगा, लेकिन स्टार्ट पहले किस में होगा? ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि लोकसभा से ही स्टार्ट होगा. इवन राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट द प्रोसीडिंग. अगर लोकसभा में प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी तो 100 एमपीज ऑफ लोकसभा सपोर्ट चाहिए, अगर राज्यसभा में होंगी तो 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए. ये जो है आपने सबमिट करना है किसको? स्पीकर को. अगर स्पीकर इसको एक्सेप्ट करता है
है तो क्या है, इम्पीचमेंट स्टार्ट हो जाएगा लोकसभा में। अगर राज्यसभा है तो आपने इसको किसको सबमिट करना है, चेयरमैन को, और अगर चेयरमैन एक्सेप्ट कर लेगा तो प्रोसीडिंग्स विल व्हाट स्टार्ट। वंस द प्रोसीडिंग्स आर स्टार्ट, राइट, तो जिस भी हाउस में क्या है, फर्स्ट हाउस में, जिसमें भी हो सकता है, वो लोकसभा भी हो सकता है, वो राज्यसभा भी हो सकता है, जिसमें भी स्टार्ट हुआ फर्स्ट हाउस उसको बोल रहे हैं, उसमें अगर वो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई है, प्रोसीडिंग्स क्या हो गई है स्टार्ट, उसके बाद में क्या होगा, एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी। वन इंक्वायरी कमेटी वुड बी सेटअप बाय द स्पीकर और द चेयरमैन। तो एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी। इंक्वायरी कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर्स होंगे। So in inquiry committee there would be 3 members. And what is the work of this committee? ओके ये 3 मेंबर कौन कौन हो सकते हैं, ये भी मेंशन्ड है इन द एक्ट। सो एक सुप्रीम कोर्ट का, वन शुड बी वन सुप्रीम कोर्ट जज, सेकंड वुड बी वन किसी एक हाई कोर्ट का सीजीआई, एंड वन शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरी। One should be a distinguished jurist in the eyes of president, right? तो ये 3 मेंबर एक कमेटी बनेगी by the name of inquiry committee in this house। तो जिसका काम क्या होगा, टू चेक कि जो एलिगेशंस हैं, जो एलिगेशंस जिसके बेसिस पे ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई हैं आर ट्रू और नॉट, राइट। तो ये चेक करना इंक्वायरी कमेटी का काम है कि ये जो जिन बेसिस के ऊपर, जिन एलिगेशंस के ऊपर उनके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है उनके रिमूवल के लिए, क्या वो सही भी है कि नहीं, राइट। तो इफ इट इज फाउंड दैट कि एलिगेशंस क्या है, फॉल्स हैं, तो प्रोसीडिंग्स इधर ही रुक जाएंगी, फिर तो मतलब ही नहीं है ना कि कुछ किया ही नहीं, तो फिर क्या है, व्हाई टू लाइक इम्पीच दैट पर्सन। बट इफ इट इज फाउंड दैट द एलिगेशंस आर व्हाट ट्रू, right, if the allegations are found true, so then the impeachment process would be what voted in that house। तो फिर उस हाउस में क्या है, डिस्कशन होगी उसके ऊपर, और उसके ऊपर वोटिंग होगी। और इफ दैट हाउस पास दैट वोटिंग, पास दैट थिंग इन लाइक मेजॉरिटी, तो क्या है, दैट विल मूव ऑन टू द सेकेंड हाउस। सो यहाँ तक आई होप इट इज क्लियर कि फर्स्ट हाउस में होगा, प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, इंक्वायरी कमेटी बैठेगी जिसमें 3 मेंबर होंगे, एक चीफ जस्टिस होगा किसी हाई कोर्ट का, एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, और एक कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे, जिनका काम क्या है, चेक करना कि एलिगेशन सच्चे हैं कि नहीं। अगर तो सच्चे हैं तो क्या है, वो जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है वो क्या है, वोटिंग में चला जाएगा। एंड अगर उस हाउस में वोटिंग में उसको मेजोरिटी में यस मिलता है तो दैट विल मूव ऑन टू द सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में फिर से क्या होगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगी और उसके ऊपर वोटिंग होगी, और अगर उस सेकेंड हाउस में भी वो पास हो जाता है तो देन द जज इज व्हाट इम्पीच्ड। देन दोनों हाउस से पास होके उसके बाद वो किसके पास चला जाएगा, प्रेसिडेंट के बाद, प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो जज इज व्हाट इम्पीच्ड। सो दिस इज द होल प्रोसेस जो चलेगा फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस इम्पीचमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। 2-3 चीजें मैंने डेलिबरेटली बीच में नहीं बताई हैं बिकॉज वो आई वांटेड टू आस्क एज क्वेश्चन, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है द आर्टिकल which talks about the impeachment, then you have to tell me आज तक कितने, how many judges has been impeached। कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो इम्पीच हुए हैं, तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। And this was all for today's session. Thank you so much student for joining, and if you have any suggestion feel free to write us in the comment section and answer the questions jitne bhi class mein puche gaye hain। So let's meet tomorrow at the same time. Thank you, have a great day, study well।